Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। और अब हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग। Yes, the headlines first. Well, the Union Cabinet approves increase in minimum support price of all rabi crops for 2023-24. Domestic stocks log gains around 1%. Sensex closes above 58,900 level. Nifty settles above 17,450 points. And Brent crude hovers around $91.50 per barrel. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए सभी राबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में की वृद्धि। घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 1% की वृद्धि में रहे। सेंसेक्स 58,900 के ऊपर और निफ्टी 17,450 के ऊपर हुए बंद। और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $91.50 प्रति बैरल के आसपास रहा। The Union Cabinet today approved increase in minimum support price (MSP) for all rabi crops for marketing season 2023-24. The highest increase of 500 rupees per quintal for lentil has been cleared. The MSP on wheat has been hiked by 110 rupees per quintal and barley by 100 rupees. Briefing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur said on rapeseeds and mustard, the MSP hike is 400 rupees per quintal, while on gram it is 105 rupees per quintal. The MSP on safflower has been increased by 209 rupees per quintal. So then what do you make of this increase in MSP? We've often talk about the fact that we require this to support our farmers, to increase the farmers' income. There has been a target of doubling farmers' income. Do you think that this is a step in that direction and giving them a confidence and making them kind of Atmanirbhar? Yeah, it's obviously it gives the farmers option. In some other crops, like you mentioned for wheat, there are private players also. Those options are also coming up, and their effect on the markets are also visible. So, in terms of a basic support, this is pretty much good news. And of course, as we were mentioning in our program earlier today, that it's coming at the right time. I mean, when you get these signals in the rural areas where the agriculturists are there, they might just open up their purse strings a little bit, and that's the kind of boost which a host of consumer goods and consumer-related companies are looking at. Festival sales, festival boost. And so that is sort of has got kicked off to, as per my understanding, in the urban areas. People are actually waiting for it. So it's a win-win for both sides. And of course, it's a support, no doubt, and high prices are obviously welcome as far as farmers are concerned, given the kind of slightly elevated inflation situation that we are experiencing. But apart from that, I would say that what strikes me most is the timing, and which actually, when you know that there is a slightly better realization, slightly better signal coming up on the annual, then
it signals a whole host of activities accordingly. Also, उदित, अगर हम अभी की जो सिचुएशन है, यूक्रेन रशिया का जो संघर्ष है या पोस्ट कोविड जो एक फूड क्राइसिस कहा जा रहा है कि विश्व भर में है, इस बैकड्रॉप में आपको लगता है कि प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करना भी जरूरी है? और चॉइस अगर आप देखें तो दालों को सबसे ज्यादा दिया गया है, जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका ज्यादा कंजम्पशन है उनको इंसेंटिवाइज करने का भी एक टूल है एमएसपी? बिल्कुल, वो तो है ही। और दूसरा है कई जगह में, जैसे आपने बहुत वेरी राइटली पॉइंट आउट किया, केवल गैसोलीन प्राइसेस, मतलब जो कच्चे तेल, मतलब जो हम ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में बात नहीं हो रही। खाद्य तेल भी रूस और यूक्रेन जो है काफी भारी मात्रा में निर्यात करते थे, तो उसमें एक मुश्किल आई है। फिर पाम ऑयल में इंडोनेशिया ने कुछ जो निर्णय लिए वो हमारे हितों के अनुरूप नहीं रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें एमएसपी का रोल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब आप जो आयात करते हैं उसमें अगर बाधा आ सकती है तो जाहिर है हमारे तो बिल्कुल कॉन्टिनेंटल साइज की इकोनॉमी है, इतने लोग हैं, तो हमें नेचुरली सरकार को प्राइस इंसेंटिव्स और दूसरे जो है टूल्स उसका इस्तेमाल करके आत्मनिर्भरता की तरफ जाना पड़ेगा। एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में सब कुछ आप एक देश में आप कॉस्ट एफिशिएंटली या स्मार्टली नहीं कर सकते, पर जरूरत का एक ज्यादा हिस्सा, अधिकांश हिस्सा अगर हमारे देश में तैयार हो जाता है तो उसके क्या कहने, क्योंकि हम करेंसी इश्यूज भी चल रही हैं, तो अगले कई महीनों में ये चैलेंज रहेगा। और अगर उसके चलते अगर थोड़ा सा भी हमें रिलीफ कहीं से भी मिल जाता है इंटरनल एक्टिविटीज की वजह से, वो बहुत वेलकम है। And this coupled with the fact, Udayan, you talked about a very important point, that this is about the timing, that festivities are on the corner, Diwali is around the corner. And yesterday only, the Prime Minister released cash transfers worth 16,000 crore rupees to nearly 80 million farmers under the PM Kisan scheme and launched the government's One Nation, One Fertilizer program. And now you think this is all these reforms, all these steps, this is of course the 12th installment, are a step in improving the farmers' income and also boosting the rural economy? Absolutely, and it's worth pointing out. You mentioned some of these things which are there in the news today, but it's worth pointing out that there is so much of skepticism that we sometimes go through. And it doesn't matter. We try to be very fair. Sometimes we try to be very harsh. But look at the kind of glowing tributes IMF and other institutions have given on a direct benefit transfer. The digital backbone through which transfers are happening and how smoothly they are happening. Yes. We have got glowing tributes, and which is like a tribute to the whole way of delivery of benefits to the bottom of the pyramid. And it's not a political statement in that sense. Governments across, people with different skills, and it's been a huge effort, and it's taken us years, but in a democratic setup, to deliver benefits down to the bottom of the benefit. This is something which every Indian can be very, very proud of. And when you are talking about these benefits, look at the speed at which it's going to get. There's nobody, you don't have to line up or do something. These are happening very, very quickly, and unlike the kind of hassles people use to without middlemen. Absolutely. अगर हम देखें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र, इतना अभी जो ये 2-2.5 साल एक संकट के रहे, उसमें ये मजबूती बनी रही एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमने कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखी, 3-4% की ग्रोथ होती रही। सो आपको लगता है कि ये जो सरकार की निरंतर एक रिफॉर्म पॉलिसी और काफी उनका जो जोर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने पे है, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो सॉइल हेल्थ हो, ये एक बहुत मजबूती प्रदान कर रहा है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को? बिल्कुल, क्योंकि गुणवत्ता जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उसको आगे करने के लिए हम जो कुछ भी कर सके हैं वो हमें करना पड़ेगा। सुनो, ये बताते चलें कि आप अगर ग्लोबलाइज कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को,
तो हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि हमें अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम ये चीजें आयात नहीं करेंगे, इसको हम रोक देंगे जी। तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इतनी मजबूती देनी पड़ेगी, प्रदान करनी पड़ेगी और इतना सशक्त बनाना पड़ेगा अपनी कृषि को कि वो प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और हमारे बाजारों में भी अगर आयात भी हो जाता है वो प्रतिस्पर्धा करके जीत सके। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम हमारे जो कृषक हैं, हमारे जो कृषि से जुड़े हुए फार्मर्स हैं वो ये कर नहीं सकते। तो एक पहले आज से 60 साल पहले हम आत्मनिर्भर भी नहीं थे। हम जो खाद्यान्न जो है हमारा शॉर्ट होता था वो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही राष्ट्रीय मान के लिए प्रॉब्लम था। पर आज देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं और इसका भी सहरा जो सक्सेस इसको इनफ जो है हमारे एग्रीकल्चरिस्ट, हमारे जो फार्मर्स हैं वो मिलता नहीं है। कुछ और इंडस्ट्रियल एरिया में वहां पे अगर कुछ उपलब्धि होती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि हमारे जो कृषक हैं उन्होंने इतना, आप देखिए ना, आपने ही बोला कि कैसे दृढ़ता के साथ कृषि खड़ी रही और उसी वजह से हम मजबूती और कॉन्फिडेंस के साथ वो 2 साल गुजार सके। हमें कभी भी डर नहीं था कि हमारे जो नागरिक हैं वो भूखे हो सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस हमारे में था। ये अगर कृषि हमारी मजबूत नहीं होती, कम से कम वो बेसिस नहीं होती तो नहीं हो सकती थी। पर उसमें गुणवत्ता को बढ़ाने में, आय को बढ़ाने में रोल होगा और उसके लिए कई रिफॉर्म्स, कई सुधार, मूलभूत सुधारों की अभी भी बहुत सख्त जरूरत है। सो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एफर्ट है जो रिजल्ट्स दिखा भी रहा है। आइए अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का, जहां से अच्छी खबर है। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत सकारात्मक रहने के बीच सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 1% की वृद्धि में रहे। सेंसेक्स 58,900 के ऊपर और निफ्टी 17,450 के ऊपर बंद हुए। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.94% की वृद्धि से 550 अंक बढ़कर 58,961 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.01% की वृद्धि से 175 अंक बढ़कर 17,487 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.7% की बढ़त पर बंद हुए। The Sensex and the Nifty today climbed around 1% amid positive cues from global share markets. The Sensex closed above 58,900 level, while the Nifty settled above 17,450 points. Sensex rose 550 points or 0.94% to finish at 58,961. Nifty also surged 175 points or 1.01% to end at 17,487. In the broader market at the BSE, the mid-cap index climbed 1.1% and the small-cap index 0.7% up. In the Sensex pack, 25 companies posted gains while 5 logged losses. SBI surged 3.4%. ITC and Nestle India both climbed 2.4% each. Bharti Airtel gained 2.6%. On the other hand, HDFC and NTPC both declined 0.7% each. Tech Mahindra fell 0.3%. In sectoral indices at BSE, all sectors logged gains. Capital goods gained 2%, realty sector climbed 1.8%, and industrial index surged 1.7%. Auto and power, both indices rose 1.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,002 companies gained while 1,431 fell. Shares of 132 companies remained unchanged. दादिमा, इससे पहले कि आप प्रश्न पूछें, हम लेंगे एक छोटा सा विराम और उसके बाद फिर वापस आएंगे लेकर मार्केट मंत्र। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242।
मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। उदयन, अभी जैसा लालिमा ने बताया कि आज लगभग 1% का उछाल आया है सेंसेक्स और निफ्टी में, और ये लगातार तीसरा दिन है जब हम ये तेजी का रुख देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, प्रमुख कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो जो विश्व से संकेत जो मिल रहे हैं वो सकारात्मक हैं, और यूके में जो मिनी बजट आई थी उसके सारे जो प्रस्ताव थे उसमें पूरा यू टर्न कर दिया गया है, और जिसकी वजह से न केवल उस मिनी बजट के प्रस्ताव ने न केवल यूके में के फाइनेंशियल मार्केट्स को नर्वस किया था, वहां पे एक राउट सी हो गई थी, ग्लोबल मार्केट्स पे भी असर पड़ा था, क्योंकि उसके सारे जो प्रस्ताव हैं वो बिल्कुल यू टर्न कर दिए गए हैं। तो एक रिलीफ, एक पॉजिटिव फीलिंग आई है, और उसके वजह से आप पाएंगे कि जितने फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स थे जो ग्लोबल जायंट्स हैं, उनमें एक पॉजिटिवनेस पाई गई है। दूसरा है कि अमेरिका में जो ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट्स एंड बैंक्स हैं, जितनी उम्मीद की जा रही थी, एक पेसिमिज्म सी थी कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जिस रेट से गिरेगी उस हिसाब से नहीं गिरी। इसके अलावा डॉलर की जो एक चढ़ाव में जो एक पर्वत सा वो क्लाइम कर रही थी, उसमें ऐसा लगता है कुछ देर के लिए उसमें डॉलर ने आज सांस लेने के लिए रुक गई है, और उस वजह से एक पॉजिटिविटी वहां से आई है। इसके अलावा आप अगर देखें हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश के स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो बड़े कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, और ये उम्मीद की जा रही है, जैसे रिलायंस का मेरे ख्याल से कल रिजल्ट्स निकलेंगे, और एक पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद की जा रही है। तो कुछ जो फ्रंट रनर्स हैं, अर्ली बर्ड्स हैं, जो बड़े कंपनीज, बेलवेदर काइंड ऑफ कंपनीज होते हैं, उनके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आए हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगा, ये जो ग्लोबल क्यूज जो मिला है वो एक बहुत पावरफुल बूस्ट उसने दिया है, एंड जाहिर है क्योंकि हम भारतीय इकोनॉमी को एक ओएसिस की तरह माना जा रहा है, मरुभूमि में एक हरियाली सी जगह पर मानी जा रही है, अंधेरे में रोशनी की जगह मानी जा, स्रोत मानी जा रही है, तो इसलिए वो एक बेनिफिट हमें जरूर मिला है। As our Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, said in international arena that our fundamentals are good, foreign exchange reserves are fine, and inflation is manageable. And she says, I quote, I'm not asking for celebration, but it is true that we are holding together, unquote. Oh, absolutely. That kind of reflects the picture. I mean, here there's no point in also being apologetic or being this thing. The global average inflation, if I'm not wrong, is in excess of 9%. Of course, even the rate that has just come out is not something which we can be comfortable about or okay about. But the kind of stickiness of inflation that we are seeing globally, it's not going to vanish. This monster is not going to vanish in a hurry. Therefore, we'll have to learn and live with it and try to work our way around it. So, yes, our rupee is under pressure, but our currency has done far better than many other currencies. Yes. And we'll have to make sure that we make the most of this. So by the time the turnaround happens, because these phases never last forever, we need to make sure that when the upswing happens, we make the most of it. Even in the downswing, we make the most of it. In the upswing, we make even more hay. उद्यन, आपने अभी यूके की बात कही कि उन्होंने यू टर्न किया है, उन्होंने जो नीतियां अभी अनाउंस की थी कुछ दिन पहले, उन पे कंप्लीटली उन्होंने यू टर्न किया है, जो टैक्स कट्स थे, एनर्जी सब्सिडीज थी। सो आपको लगता है यही एक रूट प्रॉब्लम भी है अभी, जो एक एक्यूट सिचुएशन है जिसमें हम रिसेशन की तरफ भी, ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? जैसा आपने कहा, भारत तो एक ओएसिस की तरह माना जा रहा है, इवन बाय IMF, वर्ल्ड बैंक, लेकिन जो हम ग्लोबल लेवल पर ये जो एक संकट पैदा हुआ है, शायद वो बहुत ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली जो यूएस ने भी, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज ने एक वो दिया, सब्सिडीज दी, डोल्स दिए, विदाउट टारगेटिंग देम। जैसा अभी सीतारामन जी ने भी कहा कि सब्सिडीज जो है उनको टारगेट करना बहुत जरूरी है। सो आपको लगता है वहां हम लोग, हमारा एक कहें कि अप्रोच जो है वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहा है?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास वो उतने संसाधन नहीं हैं जितने कुछ देश जिनके आपने नाम लिया, उतने संसाधन नहीं थे। तो जब ये महामारी की संकट हमारे देश में एकदम से आई और हमारे जो वनरेबल पॉपुलेशन है आर्थिक रूप से, दूसरी तरह रूप से उनके रोजगार और उनकी आजीविका पे असर पड़ा, तो तब ये कहा जा रहा था कि देखो वहां पे तो ये इतने पैसे खर्च किए गए और तुम यहाँ पे तो वहां पे बात ये आती जितनी चादर होती है उसी हिसाब से आपको पांव पसारने होकर पड़ते हैं। तो तब इस बात को ध्यान में दिया गया है। हमारे पास वो डिजिटल बैकबोन है कि हम टारगेट कर सकते हैं बेहतर। हमारे पास वो एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन आती है लोगों के बारे में, बेनिफिशियरीज के बारे में, जिसमें हम उसमें कारगरता ला सकते हैं। वहां पे तो ऐसे लोगों को भी स्टिमुलस चेक मिले जिनको जरूरत भी नहीं थी। तो यहाँ ये जो आप कह रहे हैं वो जरूर है, पर अब हमें वो हमारे संसाधन कम होने की वजह से उसमें गुणवत्ता और उसमें कारगरता, उसके बारे में हम ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी था, जो हमारे अब काम आ रहा है, जो हमारे आत्मनिर्भरता और बाकी जो रिफॉर्म्स। बिल्कुल और इसलिए हमें रिफॉर्म्स करने की जो सुधार करने हमारे लिए जरूरी हो गए। और आज जब IMF और दूसरे संस्थान हैं वो इन्हीं चीजों के बारे में बातचीत करें कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजारों पर। एशियाई शेयर बाजारों में भी आज तेजी का रुख था लालिमा। सभी प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख था, सिवाय चीन के, जहां शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.1% की मामूली गिरावट पर बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1.8% के उछाल में रहा। जापान के निकेई और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी दोनों में 1.4% की वृद्धि दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% की बढ़त पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी बढ़त का रुख था। लंदन का फुट्सी 1.1%, फ्रांस का कैक 0.2% और जर्मनी का डैक्स 1.6% की वृद्धि पर थे। A look at the U.S. markets now, where the U.S. stocks kicked off the trading week yesterday with a rally after Britain reversed course on an economic plan. The three major U.S. stocks also gained amid reports of solid quarterly results of Bank of America, which lifted optimism about the corporate earnings season. The Dow Jones Industrial Average Index gained 1.9%. The S&P 500 rose 2.7%, and the Nasdaq Composite surged 3.4%. Udin, there is a bit of a dichotomy in the U.S. On the one hand, we see that there are talks of recession, global recession. On the other hand, the dollar is becoming strong. On the other hand, we also say that the employment opportunities have increased. Where do you see the U.S. economy going? Well, there is a fear of recession next year, not this year. Unlike the UK, where people are saying that it'll probably be the end of this year only it'll begin, and all dire things are being said. Germany also is under pressure simply because of their energy related crisis. They're getting a lot of energy supplies from Russia. That's got messed up. So the problem is not so much with the US this year. They're talking about it next year, maybe middle or maybe in the second half. There's a debate whether it's going to be very difficult or not. So the number one economy is not such a big problem. The number two economy is China. That's where the worry is becoming more and more. As you know, the Chinese GDP data should have been out last week. It hasn't come out, and there's a lot of discussion happening around. That's number two. There are two major engines of growth. They are one of them is just about okay. The other one we don't know. We're not getting a good picture. Third is of course European Union, where we just discussed. So yeah, as long as US is doing okay because it's so big, you still will have things chugging along. But then if things become a little more grey in EU and China, which seems to be the case,
then there will obviously be challenges. And it's not going to be just challenges for them. It's going to be challenges for us also, because we export to them, we import from them. So we are not going to remain untouched by all these developments. So उद्यम डेफिनेटली चैलेंज हमारे लिए भी होगा, लेकिन ये जो आपने चाइना की बात की कि चाइना में जो एक स्लो डाउन के संकेत मिल रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी एक CII और अर्नस्ट एंड यंग का सर्वे आया है MNCs का, जिसमें ये सामने आया है कि देयर इज अ हाई इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंडिया, चाइना +1 जो एक मुहिम चली है वर्ल्ड में, उसमें इंडिया को एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन और एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है. ये आपको कितना सिग्निफिकेंट लगता है हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए? बहुत सिग्निफिकेंट है. आप अगर देखें, वो तो एक आइसोलेटेड सा एग्जांपल लगता है, पर आप एप्पल के एक्सपोर्ट्स अगर देखें, एप्पल फोन्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें तो वर्टिकल ग्रोथ हो रहा है और उसमें टारगेट्स भी बहुत ही एम्बिशियस हैं. तो वो एक एग्जाम्पल है और वो उसको हम एडवर्टाइज कर सकते हैं. जब ये चाइना +1 का आपने जिक्र किया, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सक्सेस स्टोरी तो वियतनाम है. पर हमारी जो डेमोक्रेटिक एंड सेटअप है, हमारा जो लार्जर एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है और हमारा मार्केट भी है. तो वो एक स्केल तो है, पर ये मौका अगर हम ग्रास्प कर लेते हैं, हम दोनों हाथों से इसको उठा लेते हैं, तो हमारे देश में न केवल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनोवेशन, परंतु आपके रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी. जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके साथ एंसिलरी जो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो भी तैयार हो जाती है. कई बार तो कई नए मार्केट्स डेवलप हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं. तो ये कई बार क्या होता है कि वो मौके चाहिए होते हैं. हिस्ट्री आपको प्रेजेंट करती है, आपको दो राह पे खड़ा करती है, और उस वक्त आपको दोनों हाथ से मौके का फायदा उठाना होता है, जो कि आप चाइना +1 जो कह रहे हैं वो हो सकता है और कुछ हद तक हो भी रहा है. पर अगर सक्सेस स्टोरी अगर हमें देखना है तो वियतनाम से बेहतर शायद नाम आपको ना मिले. Look at the oil prices now. Well, oil prices today fell around 0.5% in intraday trade. Brent crude was trading at $91.50 per barrel, while WTI crude prices were at $85.20 per barrel. Udyan, we are still in the process. The finance minister gave a lot of incentives for electric vehicles during the last budget and the one before that. We are also trying through our renewable energies ministry, trying to lessen our import bill and build up the renewable energy. Where do you see India going now that we have the Brent crude trading at $91.50? Well, affecting our economy. Lalima, it's better than 100, right? And we are not going to get to 75. OPEC, that's where we need. We need between 70 to 75. That's what we want. Yes. OPEC is not going to let it go there because they make money in this range. So what they are going to do is they're probably going to keep it there. We don't like it, but things like electric vehicles and other things don't happen overnight. That's something which the world has learned, that there's a transition that you need to do, and things don't happen overnight. So it's going to happen. It's going to happen, and it might happen. It might accelerate. And the role of renewables is going to be there. They're full of challenges. Where are you going to get things like lithium, cobalt, etc.? Those supply challenges are there as well. But apart from that, it's not going to, while that share is going to keep increasing, don't expect things to get dramatically transformed because of the obvious reason. These transformations take time. अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का वायदा मूल्य 10 रुपए कम होकर 50,465 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. हालांकि दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 275 रुपए की बढ़त से 56,580 रुपए प्रति किलो पर थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,658.30 प्रति आउंस पर और चांदी बिना किसी खास बदलाव के $18.70 प्रति आउंस पर थी. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन, आप स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी. धन्यवाद. And now, friends, before we close, here's a reminder of the headlines.
Union Cabinet approves increase in minimum support price of all rabi crops for 2023-24. Domestic stocks log gains around 1%. Sensex closes above 58,900 level. Nifty settles above 17,450 points. And Brent crude hovers around $91.50 per barrel. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Sonu Sood bidding adieu. Namaskar. Market Mantra.